It's the second video of chapter number first of class 8th, and the name of this chapter is My Father's Letter. And earlier we summarized the story of this chapter, and this story is based on Ruskin Bond, and it's related to his father and his relation. And this time we are going to discuss all the question answers of this chapter. So first of all, we will discuss all the MCQs we have in this chapter. So first MCQ I'm going to read. So question number first is 2 years spent with his father were the best for the author. जो 2 साल उसने अपने फादर के साथ बिताए वो बेस्ट थे, बिकॉज हिज फादर स्पेंड टाइम विथ हिम, क्योंकि उसके फादर ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था. सेकंड, बिकॉज हिज फादर वाज हिज कंपेनियन, क्योंकि उसके फादर उसके साथी थे उस समय पर. बिकॉज हिज फादर गेव हिम एडिक्वेट अटेंशन, फादर ने उसको पर्याप्त समय दिया. सो एज यू कैन सी हियर ऑल द पॉइंट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर आंसर. सो ऑल ऑफ अबव, क्योंकि उसके फादर ने उसके साथ टाइम भी स्पेंड किया और वो इसके कंपेनियन भी थे और उन्होंने काफ़ी उसको अटेंशन, काफ़ी ध्यान भी दिया. सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी कैन से ऑल ऑफ देम. सो राइट आंसर इज डी. सो हियर वी कैन मार्क नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 2, दे चेंज देयर रेजिडेंस. उनको रेजिडेंस अपना चेंज करा था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5 टाइम एंड फ्रॉम 10 to places, from a couple of rooms to tent, and none of above. So in this chapter 4 time is mentioned. जो आंसर दिया वो 4 टाइम मेंशन है. फ्रॉम टेंट्स टू पैलेस, इट इज़ नॉट in this chapter, and the same thing is not mentioned here in this chapters. And from the couples of rooms to tent, no, so none of above is correct answer. Answer number D is correct answer. And now question number 3, during the day, डे टाइम में क्या होता था? व्हेन हिज फादर यूज्ड टू गो टू हिज ऑफिस नियर टू द रेड फोर्ट. जब वो रेड फोर्ट पर चले जाते थे, उनका ऑफिस था वहाँ पर, एंड ही वाज पार्ट ऑफ रॉयल एयरफोर्स इंडियन. सो ड्यूरिंग द डे टाइम द ऑथर वेंट आउट टू प्ले विथ फ्रेंड्स. सो प्रॉब्लम ये थी कि दैट ही हैड नॉट फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स थे ही नहीं. सो कैसे जा सकता था? सेकेंड, द ऑथर वेंट थ्रू द स्टैम्प्स एंड फोटोग्राफ. वो स्टैम्प्स एंड फोटोग्राफ जो फादर की थी उनके साथ खेलता था. एंड थर्ड ऑप्शन, द ऑथर्स फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस. ऑथर्स के फादर स्कूल ऑफिस नहीं जा सकते थे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था. एंड नन ऑफ अबव, इट्स रॉन्ग आंसर. सो द ऑथर वेंट थ्रू द स्टैम्प्स एंड फोटोग्राफ्स. सो फोटोग्राफ्स, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन. द ऑथर वेंट through stamps and photographs of his father. His father had collection of stamps and photographs, so he used to spend time with these things at home, and he had one gramophone also. He used to play it. Number 4, to send his son to school in London, the authors के फादर ने क्या किया? उसको लंदन में स्कूल भेजने के लिए. So sold his stamps, अपने स्टैम्प्स बेच दिए. टुक अ लोन लिया, उन्होंने उधार लिया. एंड वर्कड ओवर टाइम, उन्होंने पार्ट टाइम यानी ओवर टाइम काम किया. एंड नन ऑफ अबव, इनमें से कुछ भी नहीं. सो his father had unique collection of stamps, and he sold his stamps, and he got a good amount for all the stamps. So option A is correct option, sold his stamps. All the statements are true except one. इसमें सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं एक को छोड़ करके. सो we'll find out the false statement. The author wanted to be a chemist when he grew up. It's a wrong statement, and so we have this one. So it's a wrong one, and others maybe they are true statement. The author wanted to be a tap dancer. It's true. And the author wanted to learn at home. Yes, he did not want to leave his father. And the author saw a movie with his father. It's a true statement. All the 3 statements are true, and all the 3 options are true, and one except one, this one is wrong. So we should mark first. Question number 5, first option is its answer. Now fill-ups. So as you can see that we have a little space, not enough space here, so we cannot write our answers here completely. So I can mention it orally. When his father made money from stamp, it taught the author that. इससे author ने क्या सीखा? इससे क्या सीखा? That it was
possible to make money out of one's hobby। उसने ये सीखा कि एक व्यक्ति अपनी हॉबी से भी पैसे कमा सकते हैं जब उसके फादर ने अपने सारे स्टैम्प्स को सोल्ड किया, यानी कि बेचा जब उसके फादर ने, तो उसने ये सीखा कि अगर पॉसिबल हुआ तो कोई भी व्यक्ति अपने जो है हैबिट से और हॉबी से पैसा भी अर्न कर सकता है। हॉबी सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन हिज फादर ब्रॉट अप अ टॉपिक ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल द ऑथर। जब उसके फादर ने कहा कि वो स्कूल ज्वाइन कर ले, यानी कि ऑथर रस्किन बॉन्ड ज्वाइन कर ले, तो उसने क्या किया? ऑथर आर्ग्यूड, उसने अपने फादर से आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूड टू डिस्करेज हिज प्लान। वो चाहता था कि उसके फादर उस प्लान को फॉलो ना करें। ही वांटेड टू बी विथ हिज फादर, और वो अपने फादर के साथ रहना चाहता था। सो ही आर्ग्यूड टू डिस्करेज हिज प्लान, अपने फादर के प्लान को डिस्करेज करना चाहता था। सो ही आर्ग्यूड टू डिस्करेज हिज प्लान, उसके प्लान को वो एग्री नहीं था और अपने फादर से कोशिश कर रहा था कि वो अपने फादर को मना ले कि वह उसको प्री स्कूल में ना भेजे, और वह अपने फादर के साथ ही रहना चाहता था। हिज फादर, नाउ नंबर 3, हिज फादर वांटेड टू सेंड हिम टू द स्कूल। उसके फादर इसको स्कूल भेजना चाह रहे थे, क्योंकि उसके फादर इसको क्यों भेजना चाह रहे थे? हिज फादर वांटेड टू सेंड हिम टू स्कूल सो दैट, क्यों भेजना चाह रहे थे? सो दैट ही कुड, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर फादर टू टीच हिम ऑल द सब्जेक्ट्स। तो घर पे तो फादर के लिए नहीं पॉसिबल था कि वो सब कुछ पढ़ा सके, सो दैट, ताकि ही कुड लर्न बेटर। ही कुड लर्न बेटर, वो अच्छा सीख सके और अच्छे से सीख सके, क्योंकि फादर के लिए सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाना पॉसिबल नहीं था और उनके पास इतना इनफ टाइम भी नहीं था उसके लिए। सो if you want to change your answer, then you can change it according to the condition. लगभग आपको वही सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो यही चाहते थे कि फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर ही सेंट हिम टू स्कूल, और ही डिसाइडेड टू सेंड हिम स्कूल। सो जो भी था, यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ऐसा नहीं कि यू कैन ओनली राइट दिस वन और दिस वन इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फादर कुड नो लॉन्गर कीप हिज सन विथ हिम व्हेन। फादर अपने साथ अपने लड़के को या रस्किन बॉन्ड को नहीं रख पाए। कब नहीं रख पाए? व्हेन he was posted to कराची, जब उसको कराची पोस्ट कर दिया गया था, यानी कि भेज दिया गया था। When he was posted to कराची, जब फादर को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उनको उनकी जॉब जो है ट्रांसफ़र कर दी गई थी कराची में। सो एट द टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द फादर टू कीप हिज सन विथ हिम। उस फादर के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपने लड़के यानी कि रस्किन बॉन्ड को भी अपने साथ रख सके। नंबर 5, while the author was in prep school, his father was, उसके फादर जो थे कहाँ थे? He was at the time he was posted to कोलकाता। He was posted to कलकत्ता, उनको कलकत्ता भेज दिया गया था। At the time he was writer's father was with his mother, और poet's granny के साथ थे, जो poet की granny थी उनके साथ थे। Now you have two sentences. We have been seeing too many pictures. Everyone say I spoil you. कहने का मतलब है कि हम दोनों बहुत पिक्चर्स देखते हैं और हर कोई कहता है कि मैंने तुम्हें स्पॉइल कर दिया है। ये किसने कहा था? Who said? Father said, और writers और author's father said to his son. Who is he speaking to? He was speaking to his son Ruskin Bond. Ruskin बॉन्ड। ये फादर ने जो है
अपने सन को कहा है कि मैंने सब कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिक्चर्स दिखा दिखा के बर्बाद कर दिए। क्यों कहा गया है? बिकॉज फादर वॉज वरीड अबाउट हिज ब्राइट फ्यूचर एंड ही वांटेड टू मेक हिम, और Ruskin wanted to be a tap dancer, but his father wanted to make him a chemist. So just because of it, and it was not possible for father to teach him, and he thought that these things are useless, कि ये जो चीज़ें वो दिखा रहे थे पिक्चर्स वगैरह, वो उसके लिए क्या थी? यूजलेस थी। It was not part of his study and not useful for him. So ये useful भी नहीं थी, so for यूजलेस थी उसके लिए। एंड फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर, और फॉर हिज फ्यूचर फादर वांटेड टू सेंड हिम इन प्रेप स्कूल। उसको कहाँ भेजना चाहते थे? प्री स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में, प्रेप स्कूल में भेजना चाहते थे। ही वांटेड टू सेंड हिम इन अ प्रेप स्कूल में उसको भेजना चाहते थे ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, I was in hospital for a long time and this is the reason why I did not got a letter from me. You did not get a letter from me for several weeks. किसने कहा था? जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो फादर थे। Who wrote these lines? Father. Authors father, and किसको लिखे थे? रस्किन बॉन्ड को। क्यों लिखे थे? Because he had a malaria. Father was not well for a long time and it was not possible for father to write a letter to his son. So just because of it, he said this line that I was in hospital for a long time and this is the reason why I did not get a letter from several week. That's why he did not get a letter for a several week. So that's the end of MCQs and fill-ups. Now we have short question answers as you can see here. So I'm going to read all these questions one by one. How did father keep in touch with him when he was at school? जो ऑथर था वो शिमला में था और फादर जो थे कोलकाता में थे। तो उनके बीच में जो है पॉसिबल कैसे हुआ कांटेक्ट हो पाना? सो आपको पता ही है, my father's last letter is the name of this chapter. So यही एक जरिया था उनके बीच में कम्युनिकेशन का। सो आंसर शुड बी, आंसर क्या होना चाहिए? फादर वाज इन कोलकाता एंड सो ही वाज अनेबल टू गो टू हिज सन। वो इतना एबल नहीं था कि वहाँ से जा सकता था। ही वाज नॉट वेल और डिस्टेंस भी बहुत था सिमिलर टू कोलकाता। इट वाज नॉट पॉसिबल एट द टाइम टू गो और टू विजिट रेगुलरली। सो बट फादर रोट लेटर टू हिज सन रेगुलरली टू कीप इन टच विथ हिम। फादर ने क्या किया उसको? फादर ने उसको हमेशा लेटर लिखे हैं। फादर रोट लेटर टू हिज सन, उसको जो है हमेशा टाइमली जो है लेटर्स लिखें सो दैट वो अब एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकें। वाई डिड रस्किन ट्रेजर हिज फादर्स लेटर्स? उसने फादर के लेटर को ट्रेजर यानी कि संभाल के क्यों रखा है और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी उसने अपने फादर के लेटर को? सो Ruskin treasured his father's letter because it was the last letter of his father and it was a good example of the sort of letter his father wrote to him. और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। एक तो लास्ट था, ये लास्ट लेटर था, और अनदर थिंग कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था शॉर्ट लेटर का। एग्जाम्पल ऑफ लेटर, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था लेटर का कि लेटर कैसे लिखते हैं। सो इसलिए दोनों चीज़ें थी, एक तो इसके फादर का लास्ट लेटर था, ये तो बहुत मेन रीजन है कि इसी वजह से उसने रखा था। साथ साथ में एक अच्छा एग्जाम्पल भी था कि लेटर कैसे लिखते हैं। लेटर जो यहाँ पर ऑथर है उसने बहुत कुछ सीखा अपने फादर से इस लेटर के थ्रू। व्हाट एडवाइस डिड फादर गिव हिम अबाउट द हैंड राइटिंग? यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि ऑथर ने छोटी हैंड राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें एक ही पेज के ऊपर लिख दी थी, तो फादर ने उसको सजेस्ट किया था। सो वी कैन राइट as an answer we can write his father advised him to use a larger style of writing. उन्होंने उसको बड़ा लिखने के लिए कहा and he used a small handwriting in his last letter. It was not good for him or his eyes. यानी कि जो रस्किन बॉन्ड था उसकी और उसकी आंखों के लिए अच्छा नहीं था। फादर ने उसे यही समझाया to get into a habit of writing small. So फादर ने उसको एडवाइस किया कि वो जो है लार्जर स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज़ करे, यानी कि बड़े बड़े फॉन्ट बनाए, जो लिखने का तरीका होता है उसको चेंज करे और उसकी
हैबिट उसको ना पड़ जाए छोटे लिखने की, तो इसलिए जो है उसको सजेस्ट किया था कि वो बड़ा लिखे, बिकॉज एट द टाइम ही वॉज इन प्रेप स्कूल, यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल में था उस समय पर, जिसको प्ले स्कूल भी कहते हैं आज के टाइम पे, और इसलिए फादर ने उसको सजेस्ट किया था ताकि वो फ्यूचर में हैंड राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस ना करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम वेयर डिड ऑथर्स फादर सेंड लास्ट लेटर, लास्ट लेटर कहाँ से लिखा हुआ था? सो जो लास्ट लेटर, यू कैन सी द लेटर के एट द टॉप ऑफ दैट लेटर यू कैन सी द नेम ऑफ प्लेस, प्लेस का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। सो नाम जो था वहाँ पर लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है कलकत्ता। Calcutta is there, and where did he tell him about the weather? What did he tell him about the weather? Weather के बारे में पोएट के फादर, ऑथर के फादर ने ऑथर को क्या लिखा है? सो फादर ने जो है उसको समझाया था, क्योंकि ही वॉज अवेयर अबाउट वेदर ऑफ शिमला, एंड सो ही रोट समथिंग फॉर हिज सन। उसके लिए क्या लिखा था? तो यहाँ पर उसने लिखा है, द ऑथर्स फादर सेंट द लास्ट लेटर फ्रॉम कोलकाता, फादर टोल्ड हिम दैट द रेन्स वर ओवर इन द हिल्स वेयर द ऑथर वाज, जहाँ पर ऑथर था वहाँ पर जो है रेन्स ओवर हो गई हैं, एंड इट वुड बी नाइस टू हैव अ सनी डे इन सितंबर। उन्होंने बोला था कि फादर में अब रेनी डे ओवर हो गया है, रेनी सीजन ओवर हो गया है, और उसके बाद में जो है यहाँ पर सितंबर जो होगा, सितंबर का मंथ बहुत ही क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा और सनी होगा। सनी मतलब होता है जिसमें सूर्य पूरी तरह से खिलता है, अच्छे दिन होते हैं। व्हेन हिज हॉलीडेज वर ऑन, जब उसके हॉलीडेज स्टार्ट होंगे। सो फादर उसको बोलते हैं कि वो हॉलीडेज अपना वहाँ एंजॉय करेगा, तो उस समय वेदर कैसा होगा। सो ही गेव हिम एडवाइस फॉर द सीजन, नेक्स्ट सीजन और सीजन ऑफ सितंबर। आफ्टर दैट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मिसेस मूर्थे टेल द ऑथर। जो कैरेक्टर है मिसेस मूर्थे करके कुछ हैं, तो इन्होंने जो है ऑथर को क्या बताया था? तो ही गेव हिम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फादर्स डेथ। इन्होंने जो है इसको ऑथर को जो है इसके फादर की डेथ की इंफॉर्मेशन दी है, डेथ की इंफॉर्मेशन दी, एंड ही सेड दैट गॉड हैड नीडेड हिज फादर मोर देन ही हैड। उन्होंने कहा कि गॉड को तुम्हारे फादर की जरूरत ज़्यादा थी, इसलिए वो उन्होंने अपने पास उनको बुला लिया, हिज फादर मोर देन हिम। उसके गॉड को जो है उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि गॉड को उनके फादर की रिक्वायरमेंट उनसे ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने पास उसके गॉड को बुला लिया। ऑथर कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट एट द टाइम, बट जब वो बड़ा हुआ था तब उसको स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया, क्योंकि एट द टाइम ही वॉज अराउंड 9 to 10 year old व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर। What did the author keep? Now, long answers question. How did the author keep himself occupied when he was all alone? जब वो घर पर अकेला होता था क्या करता था? The same question we discussed earlier. यही क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब वो घर पर होता था तो क्या करता था, कैसे टाइम अपना स्पेंड करता था। So the answer should be, कैसे होना चाहिए आंसर? The author did not have a friend. उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे, but he was unable to keep himself occupied. लेकिन अपने आप को बिजी रखने के लिए when he was all alone, वो जब अकेला था तो क्या करता था? बिकॉज ही हैड हिज फादर्स बुक्स, उसके पास अपने फादर की बुक्स थी, स्टैम्प्स, ओल्ड ग्रामोफोन, हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, अ स्क्रैप बुक, एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, एंड इतनी सारी चीज़ें थी उसके फादर की। उसके पास में बुक्स थी, स्टैम्प्स थे, ग्रामोफोन था, पोस्ट कार्ड थे, स्क्रैप बुक थी, एल्बम थी, फोटोग्राफ्स थी, वो सभी चीज़ों के साथ में दिन भर में एंजॉय करता था। एंड आफ्टर दैट समटाइम ही वुड एक्सप्लोर द जंगल बिहाइंड द टेंट। टेंट के पीछे जंगल भी था जिसमें वो कभी कभार घूमने निकल जाया करता था। एंड ही वुड हैव हिज लंच विद अ फैमिली लिविंग इन अ नेबरिंग टेंट। और कभी कभार जो है वो पास के पड़ोस के टेंट में जो है जा करके वहाँ जब वो अकेला होता था तो वो उनके साथ में अपना लंच करता था, क्योंकि मॉर्निंग में फादर निकल जाते थे और शाम तक आते थे, तो वो लंच जो है वहीं स्पेंड करता था या फिर अपने फादर की जो चीज़ें थी उनके साथ खेलता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब ब्रीफली द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। जो लेटर का कंटेंट्स है उसको हमें डिस्क्राइब करना है कि लेटर में क्या क्या लिखा था, उसके कंटेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब करने को बोला है कि लेटर में क्या क्या लिखा था। सो जैसे कि आप जानते हैं कि कभी हम लेटर में लिखते हैं तो सारी डिटेल लिखते हैं, और
उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फादर ने उसको सजेस्ट की थी या लिखी थी, और लास्ट लेटर था, बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए, और काफ़ी समय बाद उसने फादर ने जो है अपने सन रस्किन बॉन्ड को लिखा था ये लेटर, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन की थी। सो जो इसमें डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, ऑथर्स फादर रोट दैट ही हैड मलेरिया फर्स्ट and he was not strong enough to go to work, and he wrote about Alan, William and Grant. जो ऑथर के फादर थे उनको मलेरिया हो गया था, सो इसकी वजह से इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू ऑफिस, सो नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। सो उन्होंने उनको काफ़ी टाइम से लेटर भी नहीं लिखा था, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द फादर टू राइट अ लेटर टू हिज सन, वो नहीं लिख पाए। उसके अलावा फादर ने जो है इन्फॉर्मेशन दी उसको एलन के बारे में, जो उसकी यंगर सिस्टर थी एलन, और उसके अलावा उसका जो ब्रदर था इसमें विलियम, इस कहानी के अंदर और इस स्टोरी में जो मेंशन किया गया है विलियम, उसके बारे में मेंशन किया था, और ग्रैनी के बारे में मेंशन किया था। ऑल ऑफ ग्रैनी एंड एलन वाज विथ फादर इन कोलकाता, बट विलियम वाज इन देहरादून एट द टाइम, एंड रस्किन वाज इन दैट मीन ऑथर वाज इन शिमला एट द टाइम, एंड ही वाज इन हिज प्रेप स्कूल, वो अपने प्रेप स्कूल में पढ़ रहा था, जो प्री प्राइमरी स्कूल कहते हैं वहाँ पर। सो ऑल ऑफ दे वर वेल, फादर मेंशन कि सभी ठीक थे, एंड फादर टोल्ड हिम दैट ही वुड सेंड वार्म क्लॉथ फॉर हिम, फादर ने बोला कि अब जो है शिमला में ठंडा हो जाएगा तो वो उसके लिए गर्म कपड़े भेजेगा। एंड फादर टोल्ड हिम अबाउट द वेदर एंड ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वुड डू इन सेप्टेम्बर्स हॉलीडेज। फादर ने जैसे बताया था पहले कि उसको वेदर का जिक्र किया था कि वहाँ पर जो है बहुत अच्छा सीजन होता है सितंबर, तो फादर ने पूछा था कि वो सितंबर की छुट्टियों में क्या करेगा, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर फादर टू विजिट हिम, फादर के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो विजिट करे। एंड फादर विश्ड दैट ही वुड सी हिम इन क्रिसमस हॉलीडेज, फादर ने विश किया कि वो क्रिसमस के हॉलीडेज में जो है अपने बेटे से मिलेंगे और रस्किन जो है उनसे मिलने आएगा। एंड फादर रोट अबाउट हिज लाइब्रेरी स्टैम्प्स एंड बुक शॉप्स इन कोलकाता, उसने जो है फादर ने सब चीज़ लिखी। एंड फादर सजेस्टेड हिम फॉर द लार्जर स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग, फादर ने उसको हैंड राइटिंग के लिए सजेस्ट किया क्योंकि उसने जो हैंड राइटिंग यूज़ की थी वो काफ़ी छोटी थी, एंड उसको बोला था, उसको सजेस्ट किया था दैट ही शुड राइट लार्जर स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग, और ही शुड यूज़ larger style of handwriting because he used small handwriting in his last letter. जो last letter उसने लिखा था उसमें बहुत सारे contents ने लिखने के चक्कर में he used a small handwriting, and father also advised him not to write all the points in a single page of letter. He should not think about numbers of pages. So father ने ये भी suggest किया था कि उसको pages के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए, और जितना भी हो सके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस में लिखना चाहिए, और पेजेस के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द क्वेश्चंस यू हैव इन असाइनमेंट। असाइनमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उन पर वर्क करना है, एंड यू विल गेट द मार्क्स फॉर द असाइनमेंट, एंड यू विल गेट opportunity to learn something, an opportunity to learn some new things if you will do your assignments carefully. So all the points or all the questions you have in assignments are related to this chapter.